So we are with the final match, 13 on the board, and they have all their wickets in hand. We are extremely sorry, we had switched off the sound, that's why you are not getting our live commentary. Hope you are getting this time it clearly. 13 without loss, Royal Strikers Vatapura. Feroz Magre and Zahid, two batters from the side Royal Strikers Vatapura to start the innings. 40 runs opening partnership so far between Zahid and Feroz Magre. If we see the setup of the fielding, there is wicketkeeper behind the stumps, deep fine leg place it at the boundary line. There is mid-on the onside. This time the ball rolling down. Yes, it has gone over the fine leg boundary for 4 runs. Boundary for Royal Strikers Vatapura. They are 18 in the first over. Still last delivery to go. Sohail Rathar has been expensive. 18 runs conceded from the last 5 deliveries, and still last ball to go. Feroz Magre getting up the mark with the boundary. Here is Sohail from the far end with the left hand. Crosses. Oh, that one, that's going. An extra will be added to the tally. Very wide up the leg stump there. Remember, this is grand finale of Vatapura Cricket Club between Royal Strikers Vatapura and Colusa Knight Riders. Royal Strikers Vatapura, they won the toss and they are batting first. Next delivery, that's once again down the leg side. No hesitation in the mind of the umpire, straight with the wide. 20 runs conceded, still last delivery to go. Sohail Rathar needs to have accuracy in that bowling. Keep it on the upside, keep it in the line, only then he can finish this over. I request all my viewers to share this live telecast so that many more can get on this platform. In the meantime, once again you can see the ball going toward the boundary line, and it has gone over the boundary line as well. 24 runs. Still last delivery to go. 2 wides, 3 wides in a row plus boundary. Very expensive. He is keeping in the line, but due to turn the ball gets away from the leg stump. And 3 wide balls in a row. Feroz Magre on 4, Zahid on 5. This time plays it, and once again this time ball goes through the slip over the boundary line for 4. That brings the end of first over. 29 runs conceded from the first over. Excellent over for Royal Strikers Vatapura, but not a good over for Colusa Knight Riders. "29 runs opener partnership going on between two guns, Feroz Magre and Zahid. That's a big over for Royal Strikers Vatapura. 29 runs. Fine leg has been placed at the ring in the slip cordon. There is one fielder placed, backward point, cover and mid up. That's on the offside at the ring. On the onside, one man has been brought
Yes, long on has been placed there at the boundary line. Next delivery, this time on the backboard, plays it towards the point. There's the fielder, gets the ball, throws back, and there is no chance for the batter to go for a single. 2 dot deliveries so far. Mir Sohail. This time, ball goes towards the onside and is being fielded there. Only a single for the batters. This over seems to be very good for the fielding side. From last 3 deliveries, only a single run. Oh, that's a good delivery. Excellent delivery there. Very close to the bat, straight into the hands of the wicketkeeper. This one in there, but falling at no man's land. Ball rolling down toward the boundary line. Fielder from the slip corner comes and gets the ball, throws back. In the meantime, 2 runs taken by the batters, taking the tally up Royal Strikers Vattapura to 32, and they have all their wickets in hand. This is grand finale of Vattapura Cricket Club with Vattapura Cricket Cup. In the meantime, just turns it toward the onside, single for Royal Strikers, and they are 33 without losing any wicket. Only 4 runs conceded from this over. That's excellent over for fielding side for Colusa Knight Riders. I've got with me in the com box Hakeem Bilal. Now over to Hakeem Bilal. बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। तो फाइनल मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है इस बार। इसी आसना में गेंद खूबसूरती के साथ बैकवर्ड पॉइंट पे फील्ड की गई। 1 ही रन मिल पाएगा। फिरोज मोगरे की जानिब से एक अच्छा स्ट्रोक। अब पहला ओवर काफी ज्यादा महंगा साबित हुआ था। 30 रन आए थे पहले ओवर में, और अब अनुभव के साथ गए हैं यहाँ पे टीम कुलूसा नाइट राइडर्स। गेंद की लाइन में आके जाहिद मेराज गेंद को हल्के हाथ से खेला। फील्ड हुई, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 34 बिना किसी नुकसान के। पेस कम करते हुए मुदस्सिर डार इस गेंद को हल्के हाथ से खेला। रन आना नहीं चाहिए था वहां पे। 1 रन तेजी के साथ कंप्लीट करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 बिना किसी नुकसान के। इनिंग का ये दूसरा ओवर जारी है। मुदस्सिर इस ओवर की अगली गेंद लेकर फेरोज के लिए इस बार उड़ाना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों में रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करते हुए मुदस्सिर डार इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। गेंद की लाइन में आखिर गेंद को हल्के हाथ से धकेला, वापस फील्ड हुई फॉलो थ्रो में। रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। अच्छी लाइन पे यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए इनिंग का ये दूसरा ओवर जारी। इस बार गेंद को पुल किया, खिलाड़ी वहां पे तैनात। शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। मुदस्सिर डार इस ओवर में अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बेहतर लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं। मुदस्सिर डार की अगर बात की जाए, एक अनुभवी खिलाड़ी है, काफी क्रिकेट खेल चुके हैं। फिलहाल इनिंग का ये दूसरा ओवर खिताब होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34 बिना किसी नुकसान के। मीर सोहेल के साथ गए हैं। मीर सोहेल को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया है। वॉलरैंड से गेंदबाजी करेंगे जाहिद महराज के लिए। गेंद हवा में, स्लिप कॉर्नर में, कोई भी गलती ना करते हुए हाफिज और जाहिद महराज के वापस जाएंगे, बिल्कुल वापस जाएंगे। बल्ले के बाहरी भाग पे लगी है गेंद, और गेंद सीधे स्लिप कॉर्नर में वहां पे एक खिलाड़ी को तैनात किया गया था। एक अच्छी फील्ड के साथ गेंदबाजी करते हुए सोहेल मीर पहली गेंद पे ब्रेक थ्रू दिलाते हुए और वापस भेजते हुए इन फॉर्म जाहिद महराज को वापस भेजते हुए ये रॉयल स्ट्राइकर्स वटपोरा की टीम को लगने वाला पहला झटका। जाहिद महराज 10 गेंदों का सामना किया है, 7 रन बनाकर वापस जाते हुए 33 एक खिलाड़ी के नुकसान पे रॉयल स्ट्राइकर्स वटपोरा की टीम इस फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। और एक अच्छी शुरुआत मिली थी, मैं कहूंगा एक बड़ी शुरुआत। पहला ओवर 29 रन का गया था। अब यहां पे कन्वर्ट करने की जरूरत, ज्यादा कुछ जोखिम लेने की जरूरत है नहीं। बल्ले के बाहरी भाग पे लगी गेंद और खिलाड़ी वहां पे कोई भी गलती ना करते हुए ये पहला झटका यहां पे लगता हुआ, ये पहली विकेट यहां पे एक इंपॉर्टेंट विकेट गिरती हुई जाहिद महराज के रूप में।
नए जो बल्लेबाज अब बल्लेबाजी के लिए भेजे गए हैं, जाहिद वानी को भेजा गया है। जाहिद वानी अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर 35, एक खिलाड़ी के नुकसान पे इनिंग का ये चौथा ओवर इस वक्त जारी। सोहेल, मीर सोहेल, एक शॉट थर्ड में वाइड स्लिप यहां पे रखी गई, गिली रखी गई है जाहिद वानी के लिए। इस गेंद को हल्के हाथ से खेला, फील हुई, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 35, एक खिलाड़ी के नुकसान पे बट इदरीस। ये मुकाबला बाबा करीम वटपोरा से हम आपके साथ मुखातिब हैं और फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस बार पुल के हाफ हार्टेड पुल डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। अपना खाता खोलते हुए यहाँ पे जाहिद वानी इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36, एक खिलाड़ी के नुकसान पे बट इदरीस। नौशाद मीर, तारिक मीर हमारे साथ डोडा सिटी से इस मुकाबले का मजा लेते हैं। इस ओवर की अगली गेंद की लाइन में आके फिरदौस इस गेंद को हल्के हाथ से वापस धकेला, फील्ड हुई यहाँ पे पीस। अब यहाँ पे पीस के साथ गए नहीं है। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करो तो पहला ओवर काफी महंगा, उसके बाद यहाँ पे पेस कम की हवा में गेंद, गैप में गेंद जाएगी आधे दर्जन रन के लिए। फिरोज मोगरे के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का, घुटना टिका, इस गेंद को लिफ्ट किया, डिस्पैच किया आधे दर्जन रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 42, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इस छक्के की मदद से 42 बोर्ड पे लग चुके हैं खिलाड़ी के नुकसान पे। फिरदौस 11 गेंदों का सामना किया, 18 रन बना करना बाद। मीर सोहेल इस ओवर की अगली गेंद के छोटे से रनअप के साथ इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला, पहला रन तेजी के साथ, एक ही रन यहाँ पे चहलकदमी के साथ कंप्लीट करते हुए, पूरा करते हुए 2 बल्लेबाज। ओवर समाप्त होता हुआ मीर सोहेल का सफल ओवर 12 रन आए इस ओवर से। 43, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 4 ओवर की समाप्ति के बाद। बट इलेक्ट्रॉनिक्स वटपोरा से हाशिम भट्ट हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हुए। अब दोनों छोरों से यहाँ पे स्पिनर्स को लगाया जा रहा है। एक अच्छी स्ट्रेटेजी पावर प्ले में उस तरह की है कि पिच जिस तरह से खेल रही है मददगार साबित हो रही है स्पिनर्स के लिए। और एक अच्छी बात यहाँ पे जो स्पिनर्स से उनको मदद मिल रही है और उनके साथ ही जा रहे यहाँ पे टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान। इस ओवर की आई गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, फील्ड, स्कोर बदस्तूर 43, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर डार फेरोज के लिए, इस गेंद को काट किया, खिलाड़ी वहां पे तैनात, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 43, अच्छी लाइन पे यहाँ पे पैकेट ऑफ साइड फील्ड के साथ गेंदबाजी करते हुए मुदस्सिर डार इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। गेंद सीधे जाके स्टंप्स पे लगती हुई, खराब शॉट में कहूंगा यहाँ पे। आधी पिच पे गेंद थी, अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी भाग पे लगी, सीधे जाके स्टंप्स पे लगती हुई। और ये दूसरा ओपनर भी वापस जाता हुआ, दोनों ओपनर्स वापस जाते हुए। ये फिरोज मोगरे 43 के स्कोर पे लगने वाला ये दूसरा झटका यहाँ पे रॉयल स्ट्राइकर्स वटपोरा की टीम को। फिरोज मोगरे के रूप में 18 रन बनाए फिरोज मोगरे ने। मुदस्सिर डार को मिलने वाली है पहली विकेट। 43, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे यहाँ पे बल्लेबाजी करने का निर्णय। और अभी तक पहला ओवर बड़ा आया था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी वापसी यहाँ पे मुदस्सिर 2 विकेट लेने में कामयाब, 2 झटके देने में कामयाब की टीम को। So wonderful comeback from Koolsa Knight Riders, picking up the 2 important wickets at an for the loss of 2 wickets. This is over number 5 in progress. 3 balls have been bowled so far without any run. Mudassir Dar in his second over, excellent bowling from Mudassir Dar. Mudassir Dar getting ready, waiting for the batsman to come. And let's see who has come. It's Mudassir Nazir. Mudassir Nazar is the new batter to join the crease. Mudassir Dar from the other side ready to bowl.
Wicketkeeper standing behind the stumps. One slip placed. Backward point. Cover, extra cover and mid-off on the offside. There is no fielder at deep third man, deep fine leg. Mudassir comes in. Oh, this time keeping it away from the batter. And umpire signaling an extra to be added to the tally. This time coming in the line, pushes it, runs very hard and snatches a single there. He gets off the mark. With this single, Royal Strikers Watapora, they are 45 for the loss of 2 wickets. Still 2 balls to go. Only single conceded and a wicket from this over. 5th delivery. This time, oh, he has been bowled. What a delivery, trying to heave it, but misses it completely. And you can see the reaction from Mudassir Dar. He's very happy. He wickets from this over. Excellent bowling. And the loss of 3 wickets, Royal Strikers Watapora. Ijaz Ahmed has joined with us. Thank you very much. Assalamu alaikum wa alaikum salam. This is the final grand finale of Watapora Cricket Club. Watapora Cricket Club, I beg your pardon. And this final match is being played at Baba Karimi Sports Stadium, Watapora. After winning the toss, Royal Strikers Watapora decided to go for the batting, and they have lost 3 wickets so far in over number 5. Mudassir Dar took 2 wickets from this over. Only 4 runs conceded from 1.5 overs and 2 wickets. That says how excellent the bowling has been so far from Colusa Knight Riders. Although the first over was very expensive, 29 runs conceded from the first over from Sohail Rathar, but after then Mir Sohail, Mudassir Dar, they did their job quite comfortably and happily. They are happy with their performance. Now the new batter Parvez Ahmed, wicketkeeper standing behind the stump, slip in catching position. Backward point, cover, extra cover, mid-off on the upside ring. Mudassir with the last delivery of the over. The batter Parvez Ahmed ready. Oh, this time on the back foot, pushes it towards the point, and there is no run. That brings the end of this over. After 5 overs, Royal Strikers Watapora 45 for the loss of 3 wickets. Conducive atmosphere for the grand finale for this match, because it's cloudy and a bit breeze here over the Baba Karimi Sports Field, refreshing everyone here. First ball of the fresh over, this time just turns it towards the onside. Fieldsman at the long on, fields it, and in between a single taken by the batters, taking the tally of Royal Strikers Watapora to 46 for the loss of 3 wickets. Parvez, this time, oh, it was a bit away from the batsman, trying to touch it, but straight into the hands of the wicketkeeper. Mir Sohail with one more delivery. Oh, that might have been closed. What a delivery there. Almost the wicket has been taken there. Batsman is lucky there. Mir Sohail coming back towards his bowling mark. And there is no run. For Royal Strikers Watapora,
They need a partnership. They need to. This time turns it to. There is no chance for the batters to go across. That brings the end of one more over. Excellent bowling. 13 runs conceded and a wicket for him. Power play ended. 46 from the power play, and they lost. Happy Sophie has been brought on the Advani was bowled by Mudassir for one. In the meantime, Happy Sophie with the signal by umpire. An extra being added to the tally, taking the meantime just turns it toward the onside. One run is taken and only a single. Two fieldsmen assembled there to get the ball. Seventh over in progress. 7.78 is the current run rate. Azan is going on. Stay tuned. JK Sports Plus. We will be back after Azan.
So after Azan we are back. It's 53 for the loss of 3 wickets, and this is over number 8 in progress. 7.40 the current run rate, and the projected score is 133. Very important for Royal Strikers Watapura to have wickets in hand, to have a good partnership. Asif this time plays it towards the Extekawa fielder. They get the ball. Batsman has taken a single, only a single. Good fielding in the deep. That single takes the tally of Royal Strikers Watapura to 54 for the loss of 3 wickets. Asif in one more delivery comes in. This time that's a glorious shot with one bounce into the boundary for 4. What an excellent timing. Mudassir Nazar just cuts it, and what a great execution. This boundary takes Royal Strikers Watapura to 53, and they have lost 3 wickets. Asif 4 deliveries, 7 runs from this over. It was going great over by Asif, but the boundary. The ball disappears there. It's being searched. That was very fast, about to 6. It goes with one bounce into the boundary. Initially it was looking that Royal Strikers will go very fast, but bowling change got the colours. Mudassir Dar and Mir Sohail has done the job by picking the 3 wickets and making a bit pass there over a scoring rate. It's 58 for the loss of 3 wickets at the moment. Now the ball has been recovered there. Partnership needed for Royal Strikers Watapura. They would love to have a partnership there. Still 13 runs partnership of 17 balls between Mudassir Nazar and Parvez Ahmed. Asif in his first over, 4 balls have been bowled. Still 2 balls to go from this over. 7 runs conceded. Mudassir Nazar with the bat. Here comes this time. Oh, no chance for run. 58 for 3. Last delivery to go. This is over number 8. Last delivery. Here is Asif. Comes in, bowls, and this time driven it. Finds the fieldsman at long off. Single taken there, taking the tally of Royal Strikers Watapura to 59 at the end of 8th over. Parvez Ahmed 5, Mudassir Nazar 9. 14 runs partnership between these 2 guns. Asif has bowled 1 over, 8 runs conceded. Hafiz Sofi 1 over, 5 runs conceded. Mudassir Dar has bowled 2 overs, 4 runs, 2 wickets. He has been excellent in the bowling. Flash over from Hafiz Sofi. That's a good shot. Oh, single there. Single takes the tally of Royal Strikers Watapura to 63 for the loss of 3 wickets. Once again, Sofi, this time on the back foot, just pushes it. Runs for the batter, only a single.
That single pushes Royal Strikers Watapora to 64 for the loss of 3 wickets this time. Turns it toward the onside. Fieldsman was there. Ball was in the air for a while, but falling short of the fielder. No run there. That's a great delivery. Excellent delivery there. Surprising delivery for the batsman. 2 runs conceded so far. Wraps him on the pad probably. Goes for a single. Yes, umpire signalling that it has clipped off the pads. Single takes the tally of Royal Strikers Watapora. Single taken there, and that brings the in. वाज़ेह रही ये ग्रैंड फिनाले वटपोरा क्रिकेट क्लब का खेला जा रहा है बाबा करीमी के इस बहुत ही खूबसूरत फील्ड पर, जहां पे रॉयल स्ट्राइकर्स वटपोरा और क्लूसा नाइट राइडर्स आमने सामने। इस बार अच्छी गेंद, बड़े शॉट के लिए गए थे लेकिन पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किया। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। किसी रन का इजाफा नहीं। परवेज 7 के स्कोर पे। वहीं मुद्दस्सिर नजर ने 10 रन बना रखे हैं। दोनों के दरमियान 21 रन की पार्टनरशिप। आसिफ एक बार तैयार। पहली गेंद पे कोई रन नहीं बना, दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। बैट्समैन खेलने के लिए अभी तैयार नहीं है, तैयार हो रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से जो ये नैया है रॉयल स्ट्राइकर्स वटपोरा की कैसे आगे ले जाने में कामयाब रहते हैं। आसिफ की ये गेंद, इस बार गेंद को मोड़ दिया है तिरछे बल्ले से और वहां पे फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप और वहीं बैकवर्ड पॉइंट का जो फील्डर है बाउंड्री लाइन पे तैनात किया गया। इस बीच गेंद को उठा दिया है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार छक्का परवेज अहमद के बल्ले से निकलता हुआ। क्या खूबसूरत टाइमिंग थी, बहुत ही शानदार टाइमिंग थी। ये छक्के की मदद से मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 72। 3 खिलाड़ी आउट। अगली गेंद, इस बार गेंद को ऑफसाइड की तरफ धकेल दिया, वहां पे फील्डर मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं। आसिफ एक बार फिर तैयार हैं। इस बार गेंद को धकेल दिया है, जल्दी करनी होगी यहां पे और 1 रन चुराने में कामयाब रहे परवेज और मुद्दस्सिर। 1 रन के साथ मजमूई स्कोर रॉयल स्ट्राइकर्स वटपोरा का बढ़ता हुआ 73। 3 खिलाड़ी आउट। एक बार फिर आसिफ भाई गेंद की, इस बार आप स्टेडियम से थोड़ी सी बाहर थी, गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद गई ऑन साइड की ओर और गेंद को फील्ड किया जाता तब तक 1 रन रॉयल स्ट्राइकर्स वटपोरा के खाते में। इस 1 रन के साथ 74। 3 खिलाड़ी आउट 10 ओवर्स के इख्तिताम पर। वाज़ेह रहे आज टॉस रॉयल स्ट्राइकर्स वटपोरा ने जीता और उन्होंने फैसला किया कि वो पहले बल्लेबाजी करें। पहला ओवर बहुत ही अच्छा रहा था, 29 रन आए थे और सोहेल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे, लेकिन उसके बाद जब मुद्दस्सिर डार आए, मीर सोहेल आए, उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग की और उन्होंने 3 विकेट्स निकालकर उस स्कोरिंग रेट को थोड़ा सा कम किया है। अब परवेज मुद्दस्सिर और परवेज यहाँ पे एक बड़ी पार्टनरशिप बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 29 रन जोड़े हैं इस पार्टनरशिप में। 31 गेंदों का सहारा अब तक लिया है। देखना होगा कि कहां तक ले जाने में कामयाब रहते हैं। मजमूई स्कोर 74। 3 खिलाड़ी आउट। 11वां ओवर शुरू होने को है। विकेट कीपर विकेटों के पीछे रहेंगे और वहीं अगर देखा जाए ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर पे जो फील्डर है वो बाउंड्री लाइन पे तैनात है। वही ऑन साइड में स्क्वायर लेग और मिड विकेट दोनों फील्डर्स बाउंड्री लाइन पे तैनात। तैयार हो रहे हैं मुद्दस्सिर नजर। 11 रन बनाकर अब तक खेल रहे हैं। सामना करेंगे
सोफी का ये गेंद, और इस गेंद को निकाल दिया ऑन साइड की ओर। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की ओर, वहां पे फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड किया गया। तब तक दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर की ओर और एक रन जोड़ने में कामयाब रहे। एक रन के साथ मजमूई स्कोर 75, जबकि 3 खिलाड़ी आउट। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर, गेंद को धकेल दिया है पॉइंट की ओर, वहां पे फील्डर मौजूद, किसी रन का इजाफा नहीं। सूझबूझ से यहां पे खेलना होगा दोनों बैटर्स को। और इस बार बहुत ही शानदार गेंद थी, बड़े शॉट के लिए गए थे लेकिन आखिरी लम्हे पे अपने भले को थोड़ा सा उसकी स्पीड कम की थी, क्योंकि देखा कि अच्छी गेंद है, अंदर की ओर आ रही है और बीट हुए वहां पे। एक और अच्छी गेंद, पूरी तरह से चकमा दिया इस बार हाफिज सोफी ने। 1 रन आया अब तक पिछले 4 गेंदों में। 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार हाफिज सोफी परवेज के लिए। इस बार परवेज ने खेल दिया है, कहां जाएगी गेंद, और गेंद गई है सीधे फील्डर की जानिब। एक टप्पा खाने के बाद गेंद गई फील्डर के हाथों में। अगली गेंद के साथ बाहर निकलकर एक बार फिर खेलना चाहते थे। तो इस तरह से 11 ओवर्स मुकम्मल हुए हैं। मजबूत स्कोर 76, 3 खिलाड़ी आउट। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी हमारे साथ जुड़ पाए। सोहेल मलिक भी हमारे साथ, साकू साकिब, बाठिलाल और मलिक माजिद भी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रॉयल स्ट्राइकर्स वटापोरा, क्लूसा नाइट राइडर्स एक दूसरे के मुद्दे मुकाबल आज इस फाइनल मैच में, जो कि बाबा करीमी स्पोर्ट्स फील्ड पे खेला जा रहा है। टॉस जीतकर आज रॉयल स्ट्राइकर्स वटापोरा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और अब तक उन्होंने 11 ओवर्स में 76 रन बनाए हैं, जबकि उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं, मुदस्सिर नजर और वहीं परवेज अहमद ने शानदार खेल पेश किया है। दोनों ने 31 रन की एक अहम पार्टनरशिप अब तक बनाई है। यही लग रहा था कि यके बाद दीगर विकेटें गिरेंगी, लेकिन जिस तरह से इन 2 बैट्समैन ने बारी को संभाला है, तारीफ करनी होगी। 37 गेंदों में 31 रन। पानी का वक्फा जारी है। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। और मुदस्सिर फरीद कह रहे हैं वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत बहुत शुक्रिया। स्कोरबोर्ड की तरफ अगर हम नजर डालें, जाहिद ने 7 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया, एक चौका उन्होंने लगाया अपनी बारी में। उनकी विकेट मीर सुहेल ने ली, जबकि उनका कैच हाफिज सोफी ने लिया। फिरोज मागरे उनकी विकेट मुदस्सिर डार ने ली, उनको बोल्ड किया, 19 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने अपने बारी में हासिल किया। और वहीं जाहिद वानी की बात करें, उनकी भी विकेट मुदस्सिर डार ने ली। बहुत ही शानदार ओवर रहा था। जाहिद वानी ने 1 ही रन बनाया, 3 गेंदों का सामना किया था। वहीं मुदस्सिर नजर नॉट आउट हैं, परवेज अहमद नॉट आउट हैं। मुदस्सिर ने 12 रन बनाए हैं, वहीं परवेज ने 15 रन बना रखे हैं। अब पानी के वक्फे के बाद एक बार फिर खेल शुरू होता हुआ। 76 मजमूई स्कोर, 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। मुदस्सिर जावेद इकबाल को यहां पे मदऊ किया गया है कि वो बॉलिंग करे। जावेद इकबाल, देखना होगा यहां पे जो पार्टनरशिप पनप रही है उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है इस बार। और यहां पे बाल बच गए, फुल टॉस थी
और पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किया और वहीं 1 रन स्कोर में जाके मिलेगा रॉयल स्ट्राइकर्स वटापोरा के, और वो लेग बाय की सूरत में, 22 की सूरत में। मुद्दस्सिर नजर तैयार रहेंगे। 12 रन अब तक बना चुके हैं, 15 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका लगाया है। क्या छक्का लगाएंगे, देखना होगा कि कब वो छक्का लगाते हैं। वहीं बॉलिंग एंड पे जावेद इकबाल अपने पहले ओवर में दूसरी गेंद लेकर दौड़ के आए, एम्पायर को क्रॉस किया गेंद की, इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा बाद में आएगा। 1 और रन रॉयल स्ट्राइकर्स वटापोरा के स्कोर में। इस 1 रन के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 78, जबकि 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। जावेद इकबाल अपने बॉलिंग मार्क पे जाते हुए दौड़ना शुरू किया, एम्पायर के पास से गुजरे बाहर निकलकर, और इस बार बहुत ही शानदार गेंद थी, लेकिन यहां पे देखना होगा मुद्दस्सिर नजर ने जिस तरीके से इस गेंद को खेला है। बड़े शॉट के लिए निकले थे लेकिन अपने स्ट्रोक को चक किया और अपने आप को बचा लिया। यहां पे परवेज एक बार फिर तैयार, वहीं जावेद आए, ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को ऑन साइड की तरफ निकाल दिया है। गेंद हवा में रही थी लेकिन यहां पे जल्दी करनी होगी, दूसरा रन ले लिया है और दूसरा रन भी पूरा किया। देखना होगा यहां पे एम्पायर का डिसीजन क्या आता है। यहां पे रन आउट हुए हैं, लगा था कि दूसरा रन पूरा किया है लेकिन वहां पे बैट्समैन क्रीज से बाहर पाए गए और इस तरह से एक और झटका लगता हुआ रॉयल स्ट्राइकर्स वटापोरा को। यहां पे जल्दी नहीं थी बैट्समैन को, वो अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे थे लेकिन यहां पे जल्दी की बैट्समैन ने, और इसका नतीजा यह कि अपनी विकेट गंवा दी। चौथा झटका लगता हुआ रॉयल स्ट्राइकर्स वटापोरा को। टॉस जीतकर यही लगा था जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा कि हम ज्यादा स्कोर बनाएंगे। 180 जब इंटरव्यू में मैंने उनसे बात की तो 180 की बात की, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। 79 के स्कोर पे 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अब किस तरह से इस नैया को आगे ले जाने में कामयाब रहते हैं परवेज और इसहाल तजमुल, तो बाकी हकीम बिलाल की जबानी। रन ज्यादा यहाँ पे बोर्ड पे लगे नहीं है। फिलहाल बल्लेबाजी के लिए अब नए बल्लेबाज को भेजा गया है, जो नए बल्लेबाज अब भेजे गए हैं। तजमुल को भेजा गया है। 79 बोर्ड पे लग चुके हैं, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। पहले ओवर में आपको बताता चलो 30 रन आए थे, 30 रन आए थे पहले ओवर में। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं इनका ये 12वां ओवर जारी है। 79 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। परवेज इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे, गेंद हवा में, गेंद 6 रन के लिए जाएगी। बेहतर कनेक्शन इस बार और गेंद 6 रन के लिए, आधे दर्जन रन के लिए परवेज अहमद के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का। 26 गेंदों का सामना किया है, 21 रन बनाकर नाबाद खेरे। ये दूसरा विकेट, ये दूसरा छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ। इस ओवर की अगली गेंद छोटे से रनअप के साथ गेंदबाज जावेद इकबाल चले, सामना करेंगे उनका। गेंद एक और, इस बार बड़ा अक्रॉस द लाइन और सही कनेक्शन। वहां पे 2 गेंदों में 2 बड़े छक्के यहां पे लगते हुए इन 92 रन में 25 रन एक्स्ट्रा के रूप में आए हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं, 25 रन एक्स्ट्रा के रूप में आए हैं। इसका मतलब यहां पे सिर्फ 65-70 रन ही बने हैं, एक्स्ट्रास काफी ज्यादा दिए। अगर क्लोसर नाइट राइडर्स की बात की जाए तो एक्स्ट्रास काफी ज्यादा यहाँ पे दिए। उस कारण यहाँ पे इस वक्त स्कोर 92 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 12 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 6 ओवर्स का खेल बचा है, 6 ओवर्स का खेल आ रहा। बाकी कितने रन यहाँ से बटोरने में कामयाब होंगे 2 बल्लेबाज। अगर परवेज की बात करूं तो अपना समय ले चुके हैं परवेज, 28 गेंदों का सामना किया है, 27 रन बनाकर नाबाद। वहीं तजमुल अभी अभी आए हैं,
वन डायमेंशनल क्रिकेटर है तजुमुल, बड़ी हिट्स के लिए जाने जाते हैं। अब सामना करेंगे मीर सुहेल को, एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है। अच्छी गेंदबाजी की थी मीर सुहेल ने पहले स्पेल में, 3 ओवर 13 रन, एक खिलाड़ी को आउट किया था। और यहाँ पे उनका आखिरी ओवर, उनके स्पेल का आखिरी ओवर विकेट के लिए यहाँ पे उनको बुलाया गया है। 4 विकेट से यहाँ पे अभी तक गवाही है। बल्लेबाजी आना बाकी है। राजा सलीम, मुंतजिर फिरदौस, उरूज परवेज अभी आना बाकी है। तो कुछ बल्लेबाज अभी भी आपके पास है, लेकिन 92 अच्छी वापसी की है कोलकाता नाइट राइडर्स की। मैं अगर बात करूं, पहले वो पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से गेंदबाजी हुई, क्रेडिट जाता है यहाँ पे गेंदबाजों को। तजुमुल के इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला, एक रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जोड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। अच्छी सोच है तजुमुल इस्लाम के द्वारा, ज्यादा स्ट्राइक परवेज अहमद को दी जाए क्योंकि सेट होकर खेल। एक और प्लेड मिस, एक और डॉट यहाँ पे 93। 4 खिलाड़ी के नुकसान भी इनका 13वां ओवर इस वक्त जारी। इसके बाद 5 ओवर का खेल बचा है। गेंदा स्वीप खूबसूरती के साथ, खिलाड़ी वहां पे तैनात, उनसे फंबल होता हुआ एक ही रन मिल पाएगा। दूसरे रन के लिए मुड़े और दूसरा रन भी यहाँ पे फंबल के चलते कंप्लीट करते हुए ये 2 बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पे। अगर बड़ी हिट्स आती नहीं है तो सिंगल्स डबल्स के साथ आपको इस इनिंग्स को आगे बढ़ाना होगा। 130 140 यहाँ पे मैं कहूंगा एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। इस ओवर की अगली गेंद छोटे से रन के साथ सुहेल चले, परवेज के लिए एक और प्ले मिस, एक और डॉट ऑप्शन से बाहर थी। गेंद कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर बदस्तूर 95, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर सुहेल चले, एक और डॉट गेंद के वहां पर हल्का सा फंबल होता हुआ फॉलो थ्रू में मीर सुहेल की जानिब से। उसका यहाँ पे एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में से 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 96। अच्छा ओवर, इस ओवर में अभी तक 4 ही रन खर्च किए पहली 5 गेंदों में। तजुमुल के लिए इस गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ, उसके अलग की जानिब से खिलाड़ी जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। ओवर समाप्त होता हुआ ये 13वां ओवर यहाँ पे इख्तिताम होता हुआ। 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 97, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 13 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 30 गेंदों का खेल आना बाकी है। 30 गेंदें अभी भी बची हैं इस मुकाबले में, इस फाइनल मुकाबले में। आपको बताता चलो फाइनल मुकाबला जो खेला जा रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल स्ट्राइकर्स वटपोरा के दरमियान। टॉस यहाँ पे रॉयल स्ट्राइकर्स वटपोरा के कप्तान ने जीता था, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। पहले ओवर में 30 रन आए थे, वो एक्स्ट्रास के रूप में काफी ज्यादा रन आए थे। और उसके बाद जिस तरह से मीर सुहेल, मुदस्सिर डार ने गेंदबाजी की है, वापसी करा है। और अब यहाँ पे एक पार्टनरशिप, ये अंतिम ओवर से अंतिम डेथ ओवर्स 5 ओवर का खेल बचा है। यहाँ पे अब चाहेगी रॉयल स्ट्राइकर्स वटपोरा की टीम कुछ बड़े स्ट्रोक्स लाए जाए। 97 फिलहाल बोर्ड पे लग चुके हैं, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे 7.46 की औसत से रन बने हैं अभी तक। डार को गेंदबाजी के मोर्चे पे एक बार फिर से लगाया गया है। 4 ओवर्स में 2 ओवर्स में 4 रन खर्च के 2 खिलाड़ियों को आउट किया मुदस्सिर डार ने। पहली गेंद प्ले ने मिस, डॉट यहाँ पे पहली गेंद आती हुई। काफी ज्यादा डॉट गेंद खेली है। अगर रॉयल स्ट्राइकर्स वटपोरा की बात की जाए तो काफी ज्यादा डॉट पे गई है आज ये टीम। इस ओवर की अगली गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश, उनसे आगे गिरती हुई गेंद। एक ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जोड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में से 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 98, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का 14वां ओवर इस वक्त जारी। परवेज अहमद ने 32 गेंदों का सामना किया, 30 रन बनाकर नाबाद। कुछ बड़े स्ट्रोक्स पिछले ओवर में लाए थे, लेकिन अब यहाँ पे कोशिश करनी होगी हर एक ओवर में 1 या 2 बड़े स्ट्रोक्स लाए। गेंद हवा में, गेंद 6 रन के लिए जाएगी। सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक और एलिवेशन मिलता हुआ वहां पे बल्लेबाज परवेज अहमद को। गेंद 6 रन के लिए महत्वपूर्ण रन आते हुए 100 का आंकड़ा छूती हुई यहाँ पे रॉयल स्ट्राइकर्स वटपोरा की टीम इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 104, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 36 रन बनाकर नाबाद खेल रहे। 33 गेंदों का सामना किया है, अपना समय बखूबी लिया। अगर परवेज अहमद की बात करो तो यहाँ पे अब वो कुछ बड़े स्ट्रोक्स यहाँ पे अगर लाते हैं तो एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचने की कोशिश करेगी टीम रॉयल स्ट्राइकर्स, क्योंकि बल्लेबाजी इसके बाद भी आना बाकी है। इसके बाद भी कुछ बल्लेबाज यहाँ पे आपके पास हैं जो अच्छी खासी बल्लेबाजी करना जानते हैं। फिलहाल इस मुकाबले की मैं अगर बात करूं तो जो मिडल फेज है पूरी तरह से डोमिनेट किया कोलकाता नाइट राइडर्स में। अब ये अंत किस तरह से करते हैं, अब ये यहाँ पे फिनिश किस तरह से करते हैं, वो यहाँ पे देखने वाली बात होगी। मुकाबला यहाँ पे बाबा करीमी वटपोरा से आज जमा वटपोरा कप का ये फाइनल मुकाबला जो आज खेला जा रहा है दोनों टीमों के माबेन अब तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मुदस्सिर डार पहली बाउंड्री कंसीड करते हुए इस बार कट किया खूबसूरती के साथ, कैच हो सकता था वहां पे, लेकिन
ड्रॉप होता हुआ बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 105। 4 खिलाड़ी के नुकसान के पिछले 2 ओवर्स में यहाँ पे प्रहार करते हुए इस बार उड़ाना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क होने, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए मुदस्सिर डार अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश वहां पे तजम्मुल के द्वारा। इस बार की अगली गेंद इस बार कट खूबसूरती के साथ 4 रन के लिए जाएगी। कमाल का स्ट्रोक तजमुल इस्लाम के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, और इस ओवर को बड़ा करते हुए 12 रन आए इस ओवर से। 14 ओवर की समाप्ति यहाँ पे, और 30 रन की पार्टनरशिप इन 2 बल्लेबाजों के दरमियान मुकम्मल होती हुई 109 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। शबीर मीर हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हुए, हिलाल अहमद साहिल हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते, हाशिम भट्ट भी हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हुए 109 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 14 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी के मोर्चे पे अब किस गेंदबाज को यहाँ पे, टीम के कप्तान शायद वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कैच ड्रॉप किया था। आमिर सोफी वहां पे मौजूद थे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, उनकी जान से कैच ड्रॉप हुआ था वहां पे। फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पे अब हाफिज को एक बार फिर से लगाया गया है। ऑस्ट्रम से बाहर एक गेंद खेलना चाहते थे, कट करना चाहते थे, प्लेड मिस। गेंद विकेट कीपर मुदस्सिर के दस्तानों में। हाफिज सूफी अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे, सिर्फ 13 रन खर्च किए। अंदाजा आप लगा सकते किस तरह की गेंदबाजी हुई है। लूप देते हुए गेंद हवा में, सुहेल गेंद के नीचे आसान सा कैच लेने में वो कामयाब होते हुए, और गेंद सीधे हाथों में थमा बैठे थे वहां पे काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। मीर सुहेल वहां पे मौजूद थे, और एक आसान सा कैच हाफिज सूफी को मिलता हुआ यहाँ पे। ये 5वां झटका लगता हुआ। सेट बैटर वापस जाते हुए परवेज अहमद, अच्छा कैमियो खेला, अच्छा रिकवर किया। अगर परवेज अहमद की बात की जाए तो काफी गेंदें खेल चुके थे, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। फिलहाल 109 5 खिलाड़ी के नुकसान पे इनिंग का ये 15वां ओवर जारी। हाफिज सूफी ने आज काफी प्रभावित किया है, अच्छी गेंदबाजी, बेहतर लाइन, बेहतर लेंथ पे गेंदबाजी की है, और उस चीज का फायदा भी यहाँ पे उनको मिला है। फिलहाल अब जो नए बल्लेबाज आए, टीम के कप्तान मुंतजिर फिरदौस अब आए बल्लेबाजी करने के लिए। टीम के कप्तान है मुंतजिर फिरदौस, वो यहाँ पे गेंदबाजी करने के, वो बल्लेबाजी के लिए यहाँ पे भेजे गए। एक ऑलराउंडर के तौर पे खेलते, एक अच्छे गेंदबाज भी हैं और बल्लेबाजी में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। हाफिज ये गेंदा, इस गेंद को गैप में धकेला, खिलाड़ी गेंद के पीछे रोकना सफल, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए एक और चौका यहाँ पे। पहली गेंद पे प्रहार करते हुए मुंतजिर फिरदौस और 4 रन बटोरते हुए, अच्छा स्ट्रोक वहां पे। 113 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। हर एक रन का महत्व यहाँ पे, हर एक रन यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा एक लो स्कोरिंग मैच में, और ये बड़े फाइनल में। मुंतजिर के लिए गेंद हवा में, और गेंद जाएगी आधे दर्जन रन के लिए। अपने आप को बैक किया मुंतजिर फिरदौस ने, और ये कमाल का स्ट्रोक मुंतजिर फिरदौस के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। स्कोर बढ़ता हुआ 119 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। इसके बाद 18 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। 150 से 160 यहाँ पे कोशिश करेगी रॉयल स्ट्राइकर्स वटपोरा की टीम। हाफिज इस ओवर की अगली गेंद लेकर छोटे से रनअप के साथ चले। इस बार सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पे गेंद के पीछे। 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ 120 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। 15वें ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी। हाफिज चले, तजमुल इस्लाम के लिए इस गेंद को खेलना चाहते थे, सही बल्ले पे लगी नहीं। एक डॉट गेंद यहाँ पे आती हुई, ये आखिरी गेंद 15वें ओवर की डॉट आती हुई। 15 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 120 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। 25 रन एक्स्ट्रास के आए हैं, और वो जो पहला फेज था, वो जो पहले 6 ओवर्स थे, उसमें काफी ज्यादा एक्स्ट्रास आए थे, उस कारण ये अपना इतना स्कोर देख रहे। स्कोर 120 में काफी अंतर, अगर मैं
ये इस मुकाबले की बात करो, छोटे छोटे मार्जिन का खेल होता है। आप किस तरह से यहाँ पे खेलते हैं, आप किस तरह से फील्ड करते हैं, वो इंपॉर्टेंट। फिलहाल मुदस्सिर डार अपने कोटे का आखिरी ओवर इस इनिंग का ये 16वां ओवर करने जा रहे हैं। सामना करेंगे उनका मुंतजिर फिरदौस। 3 गेंदों का सामना किया है मुंतजिर फिरदौस ने, 11 रन बनाए हैं, 1 छक्का 1 चौका शामिल। इस बार गेंद को ड्राइव किया खिलाड़ी, वहां पे उससे फंबल होता हुआ पहला रन तेजी के साथ दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, नकारा दूसरे रन को वहां पे तजमुल इस्लाम ने। तजमुल भी चाहेंगे यहाँ पे 2 या 4 बड़ी हिट्स अगर वो लाते हैं इन आखिरी के 3 ओवर्स में, कहूंगा उनका काम यहाँ पे बखूबी होगा और वो कैलिबर रखते हैं। गेंद हवा में खिलाड़ी से दूर जाती हुई 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे। दूसरे रन के लिए यहाँ पे जाना चाहते थे, 1 ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 142, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। मुंतजिर सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। डार चले, इस बार लपेटे में गेंद को लिफ्ट किया, गेंद को डिस्पैच किया आधे दर्जन रन के लिए। मुंतजिर फिरदौस यहाँ पे कमाल की पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए, टीम के कप्तान हैं और मुंतजिर फिरदौस यहाँ पे अपने 200 छक्के अपने कैरियर में, उनकी जो अचीवमेंट है यहाँ पे 200 छक्के मुकम्मल कर चुके हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के वो बल्लेबाज हैं। बड़ी हिट्स के लिए जाने जाते हैं, अभी तक का 2 छक्के उनके बल्ले से आए हैं। यहाँ पे अपील नॉट आउट करार दिए गए। अच्छी बल्लेबाजी, बेहतर बल्लेबाजी यहाँ पे मुंतजिर फिरदौस से जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पे खरे उतरते हुए मुंतजिर फिरदौस अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। इस बार की अगली गेंद आउट, वापस जाएंगे यहाँ पे डार, उनको वापस भेजते हुए बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, और नीड भी है यहाँ पे। अब आपके पास गेंदें ज्यादा बची है नहीं, इसके बाद 12 गेंदों का खेल बचा है, तो कोशिश यहाँ पे अब रहनी चाहिए जो भी बल्लेबाज आएंगे। बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे, आपके पास विकेट्स इन हैंड है, आपके पास बल्लेबाज हैं अभी आना बाकी। फिलहाल 128, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 6ठा विकेट यहाँ पे गिरता हुआ, 6ठी विकेट यहाँ पे गिरती हुई रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम को, और अब जाके उरुश परवेज को भेजा गया है। मुदस्सिर डार को मिलने वाली है 3री विकेट। 24 रन खर्च किए हैं लेकिन 3 खिलाड़ियों को आउट किया, कमाल का स्पेल रहा है मुदस्सिर डार की जानिब से। अब जाके यहाँ पे उरुश परवेज को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। दूसरे एंड से अगर बात की जाए, तजमुल इस्लाम 8 गेंदों का सामना किया है, अपना समय ले चुके हैं, 8 रन बनाकर नाबाद खेल रहे। इन आखिरी 3 ओवर्स का खेल बचा है। इस 16वें ओवर की आखिरी गेंद का आना, वाकई डार अपने कोटे की आखिरी गेंद करने जा रहे। अभी तक 24 रन खर्च किए हैं। डार चले, डार ये गेंद उड़ाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। स्पेल यहां पे इख्तिताम होता हुआ मुदस्सिर डार का। 16 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 128, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। 12 गेंदें अभी भी बची हैं, आखिरी 12 गेंदों का खेल बचा है, और उरुश परवेज और तजमुल इस्लाम यहां से किस तरह से इस इनिंग्स को कितना बढ़ाने में कामयाब होते हैं। अब प्रिंस आगा की ज़बानी आप सुनेंगे, मुकाबला कहां तक चीज ये टारगेट देने में कामयाब होते हैं रॉयल स्ट्राइकर्स वटपुरा की टीम। Thank you, Hakeem Bilal. So we are in 17th over. 6 wickets have been taken by Clousa Riders, and they are only 4 wickets away to get all the wickets from Royal Strikers Watapura. Uruj Parvez is the new batter now, and let's see how he goes here from. He's a quality player. He's a good all-rounder. His batting style is unique. His bowling style is unique. He's passed in every department. Let's see how he plays in this grand finale of Watapura Cup. 128 for the loss of 6. 17th over to start, and I think it is Javed Iqbal there, and his second over comes in. This time plays it toward the onside. 1 run has been taken. The batsman trying to go for the second. Yes and no there, and 2 runs taken there. Good running between the wicket.
His 2 runs have taken the total of Royal Strikers Vatapura to 130 with the next delivery. Here comes Javed. This time, oh, that's a good delivery. A bit slower there for Tajamul. Tajamul has scored 10 runs so far with a boundary of 9 deliveries. Javed with the third delivery of the over. 2 runs conceded from the last 2 deliveries. This is the third one. Comes in down the track and he slashes it, and it goes all the way. It's a biggie. What a shot there by Tajamul. Gets it cleanly on the bat. Ball goes on flight. +6 from the bat of Tajamul. He moves on to 16. So Royal Strikers Vatapura 136 for 6 in the 17th over. 8 runs have conceded from the last 3 balls. 3 balls to go. How much they can draw from these 3 balls? 8.24 current run rate, and if they go with the same pace, they can set the target of 150 around. Once Uruj Parvez goes on for big hitting, it can change this projected score. Let's see how he bats. All eyes on this man, Uruj Parvez, and with him Tajamul on the other side. He's a good hitter of the ball, good striker of the ball. Both the batters need to be there to have a good partnership to get runs very quickly, as this is the 17th over in progress. Javed with the 4th delivery comes in. This time that should have been driven towards the long off, but turns it towards the onside, and a single there. That brings Uruj Parvez on strike. Uruj Parvez will face the first delivery of this match. The man Javed Iqbal with the ball comes in. Oh, this time, where it goes! Fieldsman underneath it, and he has taken a brilliant catch. Says goodbye to this good man, big man Uruj. Uruj was sent with them to get more runs very quickly, but the man was waiting there. He made no mistake and says goodbye. With head down, Uruj backing towards the dugout. This is the 7th wicket down for Royal Strikers Vatapura. Who will be the next man? Raja Salim? Raja Salim coming to join the party. They need more runs. They need more runs if they want to be to lift the title, to be the champions of this grand finale. Raja Salim has to play big hits, and he is known for those big hits. Let's see how he deals in the final. This is the 17th over, last delivery to go. Raja Salim walks in. Javed Iqbal very happy by taking the wicket of Uruj. 9 runs and a wicket from this over so far. Last delivery. First ball, high up in the Fieldsman trying to get underneath it, and the batter has to go back. It's Raja Salim backing towards the pavilion in a row. First it was Uruj, now Raja Salim. What a great bowling from Javed Iqbal. He was brought with this aim to get wickets, and he has fished out big wickets. Raja Salim and Uruj Parvez. 8th wicket goes down at the end of 17th over. 137. Royal Strikers Vatapura.
Last over to go. This is 18th over. Grand finale being played at this beautiful ground at Baba Karimi Sports Field, Vatapura. Danish Sophie watching with us. Shabir Mir, Hilal Ahmad Sahil, Mudassir Fareed, thank you very much for being the part of JK Sports Plus. That was a big moment for Javed Iqbal by taking 2 wickets in a row. Arooj Parvez and Raja Salim. He's very happy. 2 overs bowled by Javed Iqbal, 24 runs conceded, but great achievement by taking 2 wickets. Mudassir Dar on the other side, he has done his job, picked up 3 wickets, 4 overs, 24 runs, and this is going to be the last over of this first innings of grand finale. Rayan Malik says Assalamu alaikum, wa alaikum salam, sending love. Thank you very much. Yawar Makbul, wa alaikum salam, hope you are fine, doing well. And I think you are in the squad probably in the match coming up at Paribal on 22. Adnan Shafi says Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Thank you very much, hope you are doing well. Asif for Tajamul comes in. This time, that's a good shot. It's really got the point for the maximum. What a timing there. The fieldsman remained as spectator there, and it flew very high and far. This is the 6 number 2 for Tajamul. He moves on to 23. So Royal Strikers Vatapura goes up. It's 143 for 8. 5 deliveries still to go. 143 for 8. Tajamul in his next tune. 2 sixes so far. 1 boundary. 13 balls. 23 runs. Sophie a bit frustrated. Oh, that one. Good comeback. Trying to get once again a good connection, but beaten completely. Ball goes toward the pine leg area. A single resulted in the shape of byes there. That takes the tally of Royal Strikers Vatapura to 144. Third one. Asif comes for Firdaus Magre. This time, wide being signalled. So an extra being added to the tally of Royal Strikers Vatapura. 144 for 8. Firdaus Maghrib probably has been run out. Oh, that was high in the air. Fieldsman was settling under it, but it was dropped there. And couple of runs there. It takes the score of Royal Strikers Vatapura to 147. And this is the last we are playing. And this is the last over of the innings. 3 balls to go. So far, 6 single wicket, 2 that has come from this over. Asif with the 4th delivery of this over. This time, that's high up in there. Fieldsman waiting. And this is all here. Goodbye, says bowler and the catcher. So Royal Strikers Vatapura have been bowled out for 147. And the target set for Colusa Knight Riders is 148. 148 in the allotted 18 overs. We will be back with the chase. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullah.